देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट टू आयरलैंड। ये वाली फ्लाइट ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि मैंने कभी ये फ्लाइट ली नहीं है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रणव, यू गाइस आर वाचिंग जोशिंग अराउंड। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। फ्लाइट्स एंड फ्लाइट्स, कितनी तरीके की यहाँ पे फ्लाइट्स हैं जो आपको इंडिया से आयरलैंड लेके आ सकती है। या तो अगर आप एक स्टूडेंट उस पर आ रहे हैं, या आपको यहाँ पे एक जॉब मिल चुकी है और आप आयरलैंड आने का सोच रहे हो। जैसे सितंबर आने वाला है तो बहुत सारे लोग अपनी फ्लाइट्स बुक करने का सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा व्हाट ऑल टाइप ऑफ फ्लाइट यू कैन टेक, कौन से ऐसे चीपेस्ट ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं, कैसे, और अपना एक एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि कैसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा पैसे दे के आया था मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई स्टिल रिमेंबर। और कैसे मेरे सारे दोस्त यार बहुत ही ज्यादा सस्ती फ्लाइट में आया था। और उस टाइम पे मुझे था यार मैंने ये वाली फ्लाइट्स के बारे में सोचा क्यों नहीं, मैं तो जो पहली फ्लाइट मिली मैंने वही बुक करा ली थी। So let's not waste our time and begin with the flights that you can take while if you're traveling from India to Ireland. So if your college is in Dublin तो बहुत ही अच्छी बात है, because most of the flights that you take from anywhere around the world are coming to Dublin because Dublin is the main hub ऑफ एयरपोर्ट जहाँ पे अब ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स आती हैं। सेकंड जो अच्छा एयरपोर्ट है आयरलैंड का दैट वुड बी कॉर्क, लेकिन कॉर्क तक जाते जाते फ्लाइट्स और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो इफ यू आर कमिंग टू डबलिन एंड यू हैव योर कॉलेजेस इन डिफरेंट काउंटीज से गॉलवे, लिमरिक और कॉर्क और एनीवेयर, तो बेस्ट एडवाइस दैट आई वुड गिव इज लाइक टेक योर फ्लाइट टू डबलिन एंड वहां से यू कैन टेक योर बस एंड द बस कॉस्ट वुड बी जस्ट 20 यूरोस। तो 1600 अराउंड, अगर मैं 80 का यूरो लगा दो तो 1600 रुपीज की आपकी बस टिकट मिल जाएगी डबलिन एयरपोर्ट से टू एनी ऑफ द काउंटी that want you go. So now let's talk about the very first flight. The very first flight is the Air France. The Air France flight which will fly from Delhi and Mumbai and other places also in India. So Delhi and Mumbai are also the two main hubs and Chennai as well. So Delhi, Mumbai, Chennai are the three main hubs जहाँ पे most of the frequency flights जाती हैं to all these destinations. There are other destinations as well. That's Kochi, Ahmedabad, Kolkata. तो जो भी आपका nearest होगा वहाँ से आप flight ले सकते हो। तो if we talk about Air France, so the Air France will bring you from your destination, let's say Delhi, because I am from Delhi. So from Delhi to Paris, and there would be a layover in Paris, and from Paris to Dublin. The economy class in Air France will give you 23 kgs, which is just one check-in bag. But I think if you are going for a premier economy, जो शायद उसके prices थोड़े ज़्यादा होंगे, उसमें you will be getting 2 baggage of 23 kg each. अब I know you are a student, so students जो सबसे पहली बार आते हैं, they have to get a lot of stuff. Why? Because first time if you are coming here for a longer period of time. ये तो नहीं है कि 1-2 महीने बाद you are going back, so it's a very long stay that you are coming here, so you need to bring everything. And what all things you need to pack, I have made a video on that as well. उस पे जाओ, check करो the things that you need and carry all the stuff. So if you are coming from Air France, the flight duration would be somewhere around 14 hours. That is a layover in Paris and from Paris to Dublin. The second flight which is a very affordable price, जो मेरे सारे friends उसमें आए थे जिसमें मैं नहीं आया था, and I would say कि if you guys are getting this flight, so definitely go for this flight, which is the Turkish Airlines. The Turkish airline flights जो मेरे friends ने उस टाइम पे बुक करी थी when they were coming for the very first time in 2019, they booked the flight for 35,000 rupees. So 35,000 rupees में the flight will have a layover in Turkey, and Turkey के layover के बाद it will come to Dublin. Turkish Airlines will give you 2 baggages of 23 kg each. So 23 in total of 46 kg, which any student needs to get, because I still remember my first time when I was coming, my baggage was around 52 kgs. I know it is a lot, but it is the time that you need to get all your luggage because back and forth India नहीं जा सकते. Third airline, which is one of the airline जो मैं हमेशा से travel करना चाहता था, and one of the luxurious airline जिसमें मैंने सबसे पहली बार travel किया था while I was coming from Delhi, it's the Etihad Airways. Yes, so Etihad Airways and Emirates, these are two of the flights जो दिल्ली से भी चलती हैं और भी जगहों से चलती है। तो उनका layover होगा या तो दुबई या तो होगा अबू धाबी। तो इसमें जो आपको luggage allowance मिलेगी वो है 2 check-in bags of 23 kg each, which is 46 kg, and उसके ऊपर you can also have your 8 kg bag जो आप ऊपर check-in bag cabinet bags में डाल सकते हो, और उसके साथ you can also have your laptop bag. तो अब ये सारी चीजें आपको हर फ्लाइट्स में मिल जाती है, बट I was the first one to book Etihad Airways जो मैं पहली बार आया था। एंड ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि जब मैं लोगों से पूछता था कि what were your flight expenses, तो सबके आता थे 35-40 और मैक्सिमम I went for like
50K एंड आई वाज लाइक ओके क्योंकि जो मेरी फ्लाइट का सबसे पहली बार प्राइस था व्हेन आई वाज कमिंग टू आयरलैंड दैट वाज 80,000 रुपीस। यस 80,000 रुपीस। वैसे मेरी फ्लाइट का प्राइस था 65 kgs, ठीक है। अब मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, इस चीज़ का भी आप लोग बहुत ध्यान रखना, जब भी आपके पूरे लगेजेस पैक हो जाए उसको वे ज़रूर कर लेना कि उनका वेट कितना है। थोड़ा सा भी वेट ज़्यादा जाता है ना, ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करती है। क्यों ज़्यादा चार्ज करती है? बिकॉज नाउ यू आर इन अ सिचुएशन कि यू कैन नॉट गो बैक एंड तुम्हें पढ़ने तो बाहर जाना ही है एंड दैट इज योर फ्लाइट, यू हैव टू टेक। तो तुम्हारी जो मजबूरी है उस टाइम पे, उस मजबूरी का ये लोग अच्छे से फायदा उठाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा लगेज के पैसे देने पड़ते हैं। मैं जब आया था तो आई हैड 65K की ये पूरी मैंने फ्लाइट बुक करी थी एंड मेरा लगेज ऊपर था, आई थिंक 6 kgs मेरा लगेज ऊपर था एंड ही वाज लाइक यू नीड टू पे मोर। देन आई वाज लाइक कि ब्रो आई एम अ स्टूडेंट, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आई डोंट हैव दैट मच मनी। ये सब वो सब मैंने बहुत प्लीज करा उसको, बट आई थिंक इज द गाय जस्ट सेड इन रिप्लाई कि इस टाइम पे सारे स्टूडेंट्स ही जा रहे हैं, मेरी फ्लाइट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो जा रहे हैं, तो आई कैन नॉट डू दैट। अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा तो मुझे सबके लिए वैसा करना पड़ेगा। एंड दैट वाज द टाइम ही चार्ज मी 15,000 इन द एयरपोर्ट, तो 15,000 रुपए मैंने उसको दिए थे। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा लगेज अगर कैरी करना है, अगर समझो 46 kgs में भी तुम्हारा लगेज नहीं आ रहा है, यू नीड टू पे मोर बिकॉज यू नीड मोर लगेज, तो बाय इट ऑनलाइन फ्रॉम देयर वेबसाइट इटसेल्फ, क्योंकि जब वहां पे जाके पे करोगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये गलती आप लोग मत करना एंड गेट द चीपेस्ट फ्लाइट। सो एतिहाद एंड एमिरेट्स आर आल्सो वेरी गुड ऑप्शंस, वेरी लग्जरियस फ्लाइट्स एंड ऑब्वियसली वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि हमेशा से बैठने का मन करता था कि कैसी होंगी फ्लाइट। एंड इनका लेओवर है दुबई या अबू धाबी, जो शायद पहले 3 आवर्स की फ्लाइट होगी, देन वहां से डबलिन डायरेक्ट है 8 आवर्स की फ्लाइट। तो ओवरऑल आपका 14 आवर्स या उसका कुछ का फिर से पूरा इनका बनता है, क्योंकि उसमें लेओवर भी आता है शायद 1-2 घंटे का, तो 14 आवर्स का पूरा ट्रैवल होता है। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर जितने लोगों को ये नहीं पता, वैसे तो सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो आई कैन लेट यू नो दिस थिंग एज वेल। आयरलैंड की कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती, देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट टू आयरलैंड। अगर आपको आयरलैंड आना है तो आपको किसी न किसी यूरोपियन कंट्री में रुकना पड़ेगा, यूके में रुकना पड़ेगा, या आपको टर्की ऐसी दुबई ऐसी जगह पे रुकना पड़ेगा। देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट्स। तो जो मिनिमम एवरेज टाइम ऑफ ट्रैवल है फ्रॉम इंडिया टू आयरलैंड में भी लेट्स से डबलिन, वो होगा 14 आवर्स एंड मोर। तो 14 आवर्स तो आपके लगेंगे ही, तो बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कैरी लाइट सारा चेक इन में डाल दो। जो आपका कैबिनेट बैग भी है वो भी ज्यादा भारी मत रखना। क्यों? क्योंकि जब आपका लेओवर होता है या आपको जब फ्लाइट चेंज भी करनी होती है तो वो सारा लगेज आपको अपने साथ लेके जाना पड़ता है दूसरी फ्लाइट में, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। कैरी लाइट, क्योंकि कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, यू नीड टू चेंज योर फ्लाइट एंड 14 आवर्स इज द एवरेज टाइम दैट यू नीड टू टेक व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू एनीवेयर इन आयरलैंड। जो नेक्स्ट फ्लाइट आती है उसका नाम है लुफ्थांजा एयरवेज। अब लुफ्थांजा एयरवेज भी जब सुना था पहली बार तो लगता था कि ओह माय गॉड क्या प्यारी फ्लाइट होगी, क्योंकि मैंने लुफ्थांजा से भी ट्रैवल करा हुआ है। जब मैं दिल्ली आया था आफ्टर माय 2 years, या मैं यहाँ पे जब रुक के इंडिया आया था, मैं तो इंडिया से वापस आते टाइम दैट वाज अ कोविड टाइम जब मैं आया था, तो आई बुक्ड लुफ्थांजा एयरवेज। सो लुफ्थांजा एयरवेज में व्हेन यू फ्लाई फ्रॉम लुफ्थांजा योर लेओवर इज इन जर्मनी, तो आपको जर्मनी में लेओवर होगा, और जर्मनी का लेओवर का टाइम शायद 1 hour या 2 hours का लेओवर है वहाँ पे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग 23 kgs, दैट इज 1 bag of 23 kg चेक इन, जो इकोनॉमी होता है। फिर आता है एक प्रीमियर इकोनॉमी, तो उन दोनों में डिफरेंस होता है। वैसे डिफरेंस कुछ नहीं होता, बैठने का सब में सेम होता है, बट आई थिंक जो प्रीमियम इकोनॉमी होता है उसमें थोड़ा सा आपको लेग स्पेस ज्यादा आता है, बट उस लेग स्पेस के साथ साथ थोड़ा प्राइस भी हाई जाता है। और साइड बाय साइड जो 23 kgs है उससे आपको 46 kgs मिल जाता है, तो 2 वो भी आते हैं। व्हाट आई वुड प्रेफर इज कि फ्लाइट आप वाया यूरोप लो। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग फ्लाइट जो होती है, जो पहली फर्स्ट फ्लाइट होती है, उसके लिए यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि ठीक है बस एक लॉन्ग फ्लाइट लेनी है, वहां तक पहुंचना है, तो यूरोप तक आ जाओ। तो यूरोप में जब आप पहुंच जाओगे, फिर यूरोप के बाद जब जैसे समझो जर्मनी आए या फ्रांस आए या एम्स्टरडैम आए, कहीं पे भी आए, वहां से जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो सिर्फ 1 hour या 1.5 hours की होगी, जो मतलब ऐसे फ्लाई करके उतर भी जाती है, तो बहुत छोटी फ्लाइट्स होती हैं। तो उस फ्लाइट में आपको इतना ज्यादा हैसल नहीं करना पड़ता। यू आर लाइक कि चलो चले, एक बड़ा जो मेरा डेस्टिनेशन था, जो बड़ी लॉन्ग फ्लाइट थी, वो आपकी कंप्लीट हो गई है। क्योंकि दुबई वाले टाइम पे क्या हुआ था, व्हेन आई वाज कमिंग टू दुबई, तो दुबई की फ्लाइट सिर्फ 3 hours या 3.5 hours की थी, तो आई वाज लाइक ऑफ हो गई, ओ माय गॉड। अब जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो 8 घंटे की, तो नेक्स्ट फ्लाइट वाज रियली लॉन्ग। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि पहली फ्लाइट लंबी लो, दूसरी फ्लाइट छोटी लो, ताकि जो बड़ा डिस्टेंस है वो पहली कवर हो जाए, और छोटा वाला डिस्टेंस है वो तो जल्दी से हो ही जाएगा। जो नेक्स्ट फ्लाइट आती है वो है KLM। जो KLM है वो आपको नीदरलैंड्स के थ्रू लेके आएगी, तो KLM इज ऑल्सो वेरी गुड फ्लाइट। ऑल तो मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, बट मेरे जितने भी फ्रेंड्स ने ट्रैवल किया है दे सेड कि इट इज अ वेरी गुड फ्लाइट, वेरी कंफर्टेबल फ्लाइट। KLM आपको नीदरलैंड लेके आएगी, नीदरलैंड आपको डबलिन लेके आएंगे। इसमें भी सेम चीज है कि अगर आप सिर्फ एक बैग लेके जाते हो विच इज इकोनॉमी,
तो इकोनॉमी में आपको सिर्फ 23 kgs मिलते हैं। अगर आप प्रीमियर इकोनॉमी लेके जाते हो तो उसमें आपको 46 kg मिलते हैं। तो KLM, लुफ्थांजा, एयर फ्रांस, दीज आर लाइक वन ऑफ दी बेस्टेस्ट फ्लाइट इफ यू आर ट्रैवलिंग टू आयरलैंड, क्योंकि ये वाया यूरोप लेके आती है। लास्टली एक और बहुत अच्छी फ्लाइट है जो है कतार एयरवेज। ठीक है, कतार एयरवेज के भी प्राइजेस देखना, उसके भी प्राइजेस बहुत ज़्यादा सिंपल और सस्ते से होते हैं, जस्ट लाइक टर्किश एयरलाइंस। तो कतार एयरवेज आपको दोहा से लेके आती है, तो दोहा तक आपको फ्लाई करना है, देन दोहा से आपको डबलिन आना है। इसमें भी 23 kgs मिलता है, फिर 46 kg मिलता है। वही इकोनॉमी, प्रीमियर इकोनॉमी, अब ये आप खुद समझ लेना। तो ये वाली फ्लाइट भी अच्छी, क्योंकि ये वाली फ्लाइट सस्ती बहुत आती है। इनका शायद टाई अप है इंडिगो के साथ, जो हमारी इंडियन एयरलाइन उसमें आते हैं, तो इंडिगो के साथ टाई अप है, या इसका भी है और शायद टर्किश एयरलाइंस का, इन दोनों का इंडिगो के साथ टाई अप है। तो जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट होगी इंडिया से, समझो टर्की जा रहे हो या दोहा जा रहे हो, तो वो आप इंडिगो के थ्रू जाते हो, तो फर्स्ट फ्लाइट तो आपकी वो हो गई। फिर जो सेकंड फ्लाइट है वो कतार एयरवेज या टर्किश एयरलाइंस होती है, तो दे हैव अ टाई अप। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके सारे बैगेज अपने आप आगे आगे जाते रहेंगे। फर्स्ट बैगेज जो आपको चेक इन कराना है वो आप अपने एयरपोर्ट पे कराओगे, मे बी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कहाँ से भी आप फ्लाई कर रहे हो। उसके बाद जो आपको सीधा बैगेज मिलेंगे वो आपको सीधा डबलिन एयरपोर्ट, अगर आप कॉर्क जा रहे हो तो कॉर्क एयरपोर्ट में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल फ्लाइट की। अब ये वाली फ्लाइट ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि मैंने कभी ये फ्लाइट ली नहीं है। एक बार बुक कराई थी, अपने आप ही कैंसिल हो गई थी, तो मैं कहा इसमें जाना ही नहीं है, मैं आज तक कभी नहीं बैठा इस फ्लाइट में। वो है ब्रिटिश एयरवेज। ठीक है, ब्रिटिश एयरवेज में हमेशा कंफ्यूजन क्या रहता है कि वहां पे ट्रांजिट वीजा चाहिए या नहीं चाहिए अगर हम यूके जाते हैं, क्योंकि अभी आपको जैसे पता होगा यूके जो है वो ब्रेक्जिट की वजह से यूरोप से बाहर हो चुका है, सो इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन ना, वो उसमें नहीं काउंट होता। तो जितनी भी अब मैंने फ्लाइट्स देखी है, जैसे अभी मैंने ट्रैवल करा, स्पेन ट्रैवल करा, अभी मैं आपको सर्बिया होके आया, और अभी मेरी एक और ट्रिप भी आने वाली है गाइस थोड़े टाइम में, अभी लॉन्ग वीकेंड आने वाला है ना, फिर मैं कहीं जा रहा हूँ। तो जहां पे भी मैं जा रहा होता हूँ मैं हमेशा ब्रिटिश एयरवेज लेता हूँ। तो ब्रिटिश एयरवेज में जब वहाँ पे ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर फ्लाइट, समझो आप इंडिया से आए हो तो आप पहले लंदन रुके, फिर लंदन में आपने फ्लाइट्स चेंज करके दूसरे में जाना था, तो हमेशा उसमें एक नीचे आता है कि इफ यू रिक्वायर अ वीजा टू बी इन दिस कंट्री विच इज यूके, देन यू नीड टू हैव अ ट्रांजिट वीजा। तो हर बार उसमें ये आता है कि यू नीड टू हैव अ ट्रांजिट वीजा, यू नीड टू हैव ट्रांजिट वीजा। और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो आज तक कोई भी ब्रिटिश एयरवेज के थ्रू आया ही नहीं है कि वो भी और क्लैरिटी दे सकें कि उनको चाहिए नहीं चाहिए, कि अगर तुम वहां पहुंच गए तो जो अगर सोचो सिचुएशन ऐसी होगी कि आप इंडिया से फ्लाई करा, आपका एक्स्ट्रा लगेज, आपने एक्स्ट्रा लगेज के पैसे दे दिए, ठीक है, आपने कहा ये यार एक्स्ट्रा लगेज हो गया, चलो कोई नहीं, पैसे देके खत्म करा। ब्रिटिश एयरवेज से आप यूके बचाओ, बाय चांस यूके में आपसे ट्रांजिट वीजा मांग लिया, ट्रांजिट वीजा आप ऑन द स्पॉट भी खरीद सकते हो, वो भी बड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो आपको वहां पे भी आपके पैसे जाएंगे, तो आपका ट्रैवल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए माई सेफेस्ट ऑप्शन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बाकी यू गाइज नो द रिसर्च, आप लोग भी खुद रिसर्च कर सकते हो, इसकी यूके के थ्रू मत लो फ्लाइट। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, दोहा है, टर्की है, नीदरलैंड्स है, तो ये 5-6 जगह तो और हैं ही, तो यहाँ से भी आप फ्लाइट से लगते हो। ब्रिटिश एयरवेज की अगर सस्ती मिल भी रही है ठीक है, अगर बाई चांस ट्रांजिट वीजा में फंस गए तो दिक्कत आप पे आएगी। और हैसल फ्री ट्रैवल करना है भैया, हमें ये नहीं कि बहुत टेंशन से जाना है कि ब्रिटिश यूके पहुंचे और टेंशन में है कि अब कोई मुझसे वीजा तो नहीं मांगेगा, तो उस वाले टेंशन में नहीं रहना। तो बेस्ट वे इज की टू ट्रैवल फ्रॉम एनीवेयर एल्स दैन द ब्रिटिश एयरवेज। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छी फ्लाइट ले लो, अभी से ही बुक कर लो, सितंबर आने वाला है, तो अभी से बुक करके फ्लाई एंड कम टू आइलैंड। अगर कभी मिलेंगे यहाँ पे आइलैंड में तो जरूर जोशिंग अराउंड करेंगे, और जब तक नहीं करेंगे तब तक आप वीडियोस के थ्रू मैं यहाँ जोशिंग अराउंड करूंगा और आप अपना जोशिंग अराउंड करना। टिल दैट मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।